देखिए, पहली बात तो यह है कि एसआईआर का और महिला आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, कोई गलत चीज है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। जो अवैध मतदाता उनकी वोटर लिस्ट में है, उनकी पहचान करना, उनको बाहर करना, ये एक अलग प्रकार का काम है। वो एक देश के मतदाता की स्थिति को लेकर के काम किया हुआ है। हमारे देश की सॉवरेंटी को हिस्सेदार बनने का किसी विदेशी नागरिक का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक मतदाता, जहां तक महिला आरक्षण का विषय, महिला आरक्षण एक अलग विषय है। हमारे अपने देश की माताओं बहनों की, महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो राजनीतिक तौर पर आगे आए, ये हमारा एक पवित्र उद्देश्य अलग है। इसलिए वो क्या कहती हैं और लोगों को अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, वो एक राजनीतिक तौर पर अपना खेल खेल रही हैं। लेकिन उनका भी कहीं कुछ चलेगा नहीं। बंगाल की जनता, बंगाल की हमारी माताएं बहनें भी सब लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो त्रस्त किया बंगाल की जनता को, जिस प्रकार का न्याय वहां लोगों को सहन करना पड़ रहा है, और खास करके जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों का बदला अब जनता लेने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से चाहे वहां 23 तारीख को, चाहे 29 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, जनता बंगाल की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है, नई सरकार बनाएगी। एक मिनट, आप कंट्रोल करो। Opposition is alleging that actually nobody stopped BJP from giving more tickets to women in the parliament. But percentage of women MPs from BJP is far lower than the opposition parties who have opposed this bill. Lower than Congress, lower than significantly low, the percentage is significantly lower than TMC. So nobody has stopped BJP. What they have done? That percentage of women MPs in the parliament of BJP is lower than the opposition parties who have opposed this bill. Nobody has stopped BJP. This is what opposition is also alleging, that nobody has stopped BJP from giving more tickets to women MPs. But you gave less tickets, which were in your hand only. Hey, this is not the case. Actually, when the competition is between men and women differently, they participate differently, behave differently. But when the seats will be reserved for the women, all the party would be forced to give the tickets to the women only. So 33% must be assured. After 33%, any party is free to give ticket to women. More than that, there is no binding on that. But you didn't need to go to the parliament or to get approval from the opposition parties to give more tickets to the women. When there is no provision to bind the political parties, how much tickets they should give to the women or how much women, this is not the way to compare it. That's all. But there was no bar on BJP and the parties as well. I have given the answer. Whether you are satisfied or not, whether you are convinced or not, I have given the answer that there is no bar on the parties to give the tickets to women, to give the tickets to anybody else, to any different class of the section, to any person. He can get the ticket from any party. It is not the binding. And there are other objections that this bill was actually, the limitation bill was being pushed behind it. And it was revealing more than it was concealing. It was more than? It was concealing more than what it was revealing actually. See, what we have to conceal, they should clarify it. We have not concealed anything. Everything is open. That 33% of the seats will be given to the women and 50% of the present strength in the state, that will be enhanced, 50% of that. So there is no concealing of that, and proportionate representation will be done in all the states. हाँ, बताओ। देखिए 2023 में एक चीज को उस बिल में डाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही था वो, कि अगला जो सेंसस हो जाएगा और जो डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि इसको 2029 तक लागू करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि 2029 से पहले दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन जो कि दोनों काम, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का काम हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके जिम्मे होता है, उन्होंने करना होता है। अब जाके ये लगने लगा कि ये हम 2029 तक शायद दोनों काम ना कर पाए।
क्या डिलिमिटेशन और सेंसस, जब दोनों काम 29 तक नहीं हो सकते तो उस कंडीशन को हटाने के लिए अगर तब तक हो जाता है तो उस पर कराएंगे, नहीं किसी कारण से होता है तो फिर जो पिछला सेंसस है 2011 का वो भी लागू होगा। केवल इतना संशोधन था और इसी संशोधन को माने नहीं। डिलिमिटेशन का विषय भी आया था कि हम डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ाएंगे, वो संख्या तब बढ़ सकती है जब सेंसस हो जाएगा, सेंसस तब तक संभव नहीं, डिलिमिटेशन उसके बाद होगी नहीं। इसलिए उस क्लॉज को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कि हम इसको 2029 तक, अगर ये नहीं होता तो 2011 के स्ट्रेंथ पर, जनसंख्या पर हम कराने के लिए उसमें छूट दे रहे हैं, इतना विषय। अच्छा, एक महिला एक करके प्रियंका गांधी ने कहा, वही कहा गया अपना अच्छा एक मिनट, अच्छा प्रियंका गांधी ने ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस और एएनआई को बाइट देते हुए भी ये कहा, महिला आरक्षण बिल जो पहले पास हुआ था, जब सारी सदन में सभी विपक्षी हो या फिर जो सत्ता में थी उन्होंने जब पास किया था, तब उस बिल को क्यों नहीं लाया जा रहा है इस बार भी। और आगे उन्होंने यह भी किया कि हम महिला आरक्षण चाहे कांग्रेस हो या फिर अदर पार्टीज हो, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का हम किसी तरीके से विरोध नहीं कर रहे, हम उन बिल के तहत जो दूसरे 2 बिल ले आए जा रहे थे उनका विरोध है, जिससे हमें हमेशा ही जो हमें, उन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके से जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उसका विरोध है, महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं। यही बात आपने पूछी, मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ उसका, कि जो 2023 में पास हुआ था सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन उसका मैं ये था कि हम 2029 तक इसको लाने के लिए तैयार हैं। और 29 में क्योंकि महिलाओं को ज्यादा लेट करेंगे तो पता नहीं 34 में जाए और आगे जाए, 29 तक लाना है तो पिछले बिल के अंतर्गत लाना संभव नहीं था, इसलिए उसमें एक क्लॉज और डाला गया कि अगर कहीं सेंसस या डिलिमिटेशन 29 से पहले हो जाता है तो फिर तो उस एक्ट के हिसाब से होगा ही, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर हमें 2011 के सेंसस पर इसको कराने के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है। वो एक संवैधानिक प्रावधान था, इसको विरोध किया कि नहीं जो पहले किया वही करो। इसका अर्थ ये कि उनको पता है 2029 तक होगा नहीं, तो 2029 में महिला के इस आरक्षण को नहीं मानेंगे, इसके आगे जाता तो जाए। इसी प्रकार के विरोध पहले करते रहे और टेक्निकल चीजों में फंसा करके और चीजों को डिले करना, ये कांग्रेस हो अथवा विपक्षी दल हो, उन्होंने सहमति बना के किया। हम उसको चाहते थे कि 2029 में बाउंड हो जाए, इसलिए था। Sir, one of the oppositions to the bill. भाई आप कंट्रोल करो ना। Sir, one of the oppositions to the bill is that एक जो इस बिल की प्रति प्लीज। हाँ, देखिए अगर उधर से कोई विषय आता है, पहली बात तो है कि अब सेशन आएगा 3-4 महीने बाद, 4 महीने उसमें और कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर ये विषय होता है कि हम अगली डिलिमिटेशन जो अब चल रही है इसके इंतजार किए बिना 2011 पर करवाने के लिए तैयार होते हैं और कोई कंसेंसस बनता है तो अगले उसमें भी आ सकता है, लेकिन कम समय होने के कारण से वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनको पर डिपेंड है। अगर इसी प्रकार का उनका रवैया फिर रहा, एक बार गिरा तो फिर दोबारा लाने का कोई समझता नहीं। और पढ़ना की बात क्यों? One of the oppositions to the bill is that there is already a lot of burden on the taxpayer in the country और parliamentarians already country में बहुत हैं और इस बिल के थ्रू जो डिलिमिटेशन का प्रावधान लाया जा रहा है उससे टैक्सपेयर के ऊपर जो बर्डन है वो इंक्रीज होगा। और पहले जो गवर्नेंस की जो प्लान है और मॉडल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि एग्जिस्टिंग करप्शन एंड सिविक इश्यूज को हैंडल किया जाए, ना कि पहले डिलिमिटेशन के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस को और भी बढ़ाया जाए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे देश का इतिहास अगर आप लोग जानते हैं तो देश अंग्रेजों को गुलाम था, हम उस समय भी खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। आज भी अगर ये आजाद नहीं होते तो फिर भी हमारा जीवन वैसा रहता ही रहता। हमने देश की आजादी ली है तो इस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए ली है, संविधान के नाते से हम अपने देश के संचालन को खुद कर सके। और उस लोकतंत्र में जन भागीदारी ये पहला इशू होता है। जन भागीदारी हमने 1952 के पहले इलेक्शन से शुरू किया और इसमें डिलिमिटेशन का प्रावधान किया गया कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हर 20 साल के बाद डिलिमिटेशन होगी। पहले 2005-2006 में डिलिमिटेशन